A warm greetings to all the students. Students, we are doing our chapter is matter around us pure, and in this chapter the topic elements is going on. Today we will discuss types of elements or classification of elements on the basis of their properties. So on the basis of properties, elements are of three types. First one is metals, second non-metals, and third are the metalloids. In this topic, this is very much important topic, and differences between metals and non-metals and metalloids. So first property of metals is malleable. Malleable means they can be turned into sheets by a hammer. मतलब क्या, जब हम किसी भी मेटल पर हैमर चलाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको शीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उनकी शेप चेंज करके हम उनको शीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उनके फॉइल्स बना सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी एंड मेटल्स पोसेस मैलेबिलिटी. Gold and silver are the best malleable metals. Gold and silver are the best malleable metals, and due to this property, aluminium foils are used to packing our food materials like biscuits, chocolates, burgers, and many more. Second property is ductility. Ductile metals are ductile in nature. Ductile का मतलब क्या है कि हम उनको खींच खींच के उनकी शेप चेंज करके तार जैसी कर सकते हैं, वायर जैसी कर सकते हैं. Silver, copper and aluminum are best ductile metals. Due to this property, they can use to make wires. Also, copper and aluminum are very good conductor of heat and electricity. That's why all these three metals are used to make wires. Third property is conductors of heat and electricity. And हमने पहले भी किया था कि कोई भी मेटल है या कोई भी एलिमेंट है वो कंडक्टर कब होगा, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो all the metals are having free electrons. Due to this, they are good conductors of heat and electricity. Silver, out of all the metals, silver is the best conductor of heat and electricity. Fourth main characteristic of metals is they have shiny appearance. मतलब उनकी काफ़ी चमक दमक होती है, दूर से दिखती है कि अगर कोई चीज़ चमक रही है तो वो क्या होगी, पक्का ही मेटल होगी. Fifth one is hardness. Metals are the hard substances और hard elements. मतलब हम उनको easily दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं डाल सकते. अगर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते. To change their shape, we have to apply a heavy force or high pressure. Sixth important point, again a important property of metals is that they are having high tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि अब अगर हम उन पे कोई मास लटका रहे हैं, कोई वेट लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ड्यू टू दैट वेट और मास दे कैन ब्रेक. मतलब क्या है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भार भी हम डाली जाएं, रखी जाएं, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होती. दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड मेटल्स आर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज, metals like iron are used in building construction, flyover constructions, bridges, and many more mechanics machines. Seventh property is that metals are in the solid form, in the solid state at room temperature. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखनी होगी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है. बेसिकली क्या होता है कि एक लॉ होता है, लॉ के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें एक जैसी होती है, लेकिन कुछ उसमें होती है एक्सेप्शंस. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि वैसे तो स्कूल में सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, सारी क्लास में ही बच्चे काफ़ी हार्ड वर्किंग और
पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन एक आधा बच्चा होता है कि वो मौज मस्ती वाला होता है, वो उसका पढ़ने में मन नहीं करता, पढ़ाई में मन नहीं करता। ऐसा ही कुछ एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में भी होती हैं। वैसे तो बाकी सारे लोग और बाकी सारे मेंबर्स क्या होते हैं, एक रूल फॉलो करते हैं, लेकिन एक आधा ऐसा होता है कि वो उस रूल को फॉलो नहीं करता। तो समझिएगा ध्यान से कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो कौन है, हमारा मरकरी। जो मरकरी होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर। ड्यू टू दिस मरकरी इज used in thermometers for measuring temperatures. Last important characteristic or important property of metals is they are having high density, high melting point and high boiling points. अगर आपको मेटल्स की सभी प्रॉपर्टी समझ आ जाएं तो दैट मीन्स आवर टॉपिक इज कंप्लीट। मतलब क्या है इसका, कि जो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी हैं नॉन मेटल हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने पहले किया था। मेटल्स आर मेलेबल्स एंड इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स दैट मीन्स मेटल्स आर नॉन मेलेबल। नॉन मेलेबल का मतलब है कि हम उनको बीट करके उनकी शीट्स और उनकी चादर, उनके फॉइल नहीं बना सकते। हमने किया था मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब मेटल्स को खींच खींच के उनकी शेप वायर जैसी कर सकते हैं। दे कैन बी टर्न्ड इनटू वायर्स, उनकी तारें बनाई जा सकती है। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुण नॉन मेटल्स के पास नहीं है। हम उनको खींच के उनकी शेप चेंज करके तार जैसी नहीं कर सकते। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है नॉन मेटल्स का, जो कि मेटल्स के पास नहीं होता, मतलब दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का क्या मतलब है, अगर हम उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं, उनको हैमर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो क्या होती है, टूट जाती हैं। टूट जाती है और हम उनको पीट पीट के उनके ऊपर फोर्स सप्लाई करके हम उनको एज लाइक पाउडर कर सकते हैं। ये क्या होती है, भुरभुरी होती हैं। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ब्रिटल होती हैं, मतलब भुरभुरी होती हैं। हम इनको इनकी शेप चेंज करके पाउडर जैसी कर सकते हैं, चूरन जैसी कर सकते हैं। हमने किया था कि मेटल्स आर कंडक्टर्स of heat and electricity, but metals are bad conductors, or most of the metals are totally non metals are totally insulators। इसमें एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट है, वो क्या है, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट नॉन मेटल, बट ग्रेफाइट में थोड़ी बहुत ही कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है। बाकी सारी नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर्स होती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो कौन है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट थोड़ी बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इसके बाद है, हमने किया था कि मेटल्स आर हैविंग शाइनी अपीयरेंस, लेकिन इसमें क्या होता है कि नॉन मेटल्स की डल अपीयरेंस होती है, काफ़ी भद्दी सी होती है, चमक दमक कुछ नहीं होता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना होगा। आयोडीन हैज़ शाइनी अपीयरेंस। आयोडीन इज अ नॉन मेटल but still it is having shiny appearance। हमने किया था metals are hard but क्या है, non metals are soft। इसमें एक एक्सेप्शन है डायमंड की। डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, कार्बन के एलिमेंटल फॉर्म्स हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। लेकिन क्या है, जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जो डायमंड है इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर। तो ओनली नॉन मेटल दैट इज हार्ड इज डायमंड। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब हम उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा भार रख दें तो दे कैन बी ब्रेक, वो इजीली टूट जाती हैं। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी लो होती है, काफ़ी वीक होती है। हमने किया था कि मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। लेकिन क्या है, इसमें कोई खास रूल नहीं है। नॉन मेटल्स के केस में वो सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, गैसेस भी हो सकती है। सॉलिड्स की एग्जांपल है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। these are the non metals which are in the solid state at room temperature। and there is a non metal bromine which is liquid at room temperature। and गैसेस की एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड मैनी मोर। ये तो हमने किया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टी हो गई, इनके यूज़ हो गए कि किस किस प्रॉपर्टी के कारण क्या क्या यूज़ होता है। एंड इसके बाद थर्ड टाइप आती है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं,
इनकी कोई खास प्रॉपर्टीज का कोई खास पैटर्न नहीं होता, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स वाली होती है एंड कुछ अदर प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स वाली होती हैं. We have to remember some important metalloids are boron, silicon and germanium. And this is all for today. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा इनकी प्रॉपर्टीज. इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं कि बताओ भाई कॉपर की को इलेक्ट्रिक वायर्स में क्यों यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम को फूड पैकिंग के लिए क्यों यूज़ किया जाता है. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मेटल्स मेलेबल क्यों होती हैं. तो सिंपल से इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जहाँ फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बेसिकली 3 और 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड साथ ही साथ इसमें जो कुछ एक्सेप्शंस केसेस हैं, जैसे कि मेटल्स जनरली सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक मेटल है वो सॉलिड नहीं होती, उसका नाम पूछ लेते हैं कि बताओ भाई कौन सी मेटल है जो सॉलिड नहीं होती. पूछ लेते हैं कि हाँ जी नॉन मेटल्स तो डल अपीयरेंस वाली होती है, लेकिन एक ऐसी नॉन मेटल बताओ जिसकी शाइनी अपीयरेंस होती है, तो ये हमको याद रखना होगा. ऐसा पूछ लेते हैं कौन सी नॉन मेटल है जो कि हार्ड होती है, तो उसका आंसर होगा कि यस डायमंड इज अ नॉन मेटल एंड इट इज हार्ड, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर. तो पूछ सकते हैं कि हाँ जी कोई बताओ कोई ऐसी नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पे, या फिर कोई ऐसी मेटल बताओ जो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पे. तो ऐसे एक्सेप्शन केसेस आपको याद रखने होंगे एंड इट विल बी यूजफुल इन फॉर योर बोर्ड एग्जाम point of examination. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay protected.